Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. Today we are going to cover up Essay 200 together. We have already covered Essay 220, SQC1, Essay 300, Essay 315. In case you have not seen those videos, you can refer to the channel link and you can get all these videos in the playlist of Paper 3 Audit. Right. So, without wasting any further time, let's start with the main topic of discussion for today. And yes, of course, if you want these notes and you don't know where to find them, you can check out the description box below. I have mentioned the link where you can get these notes, and also I have mentioned the link of Telegram group which I have created just to update you all about the videos whenever I upload them. So you can just get the link of that group also in the description box below. You can join that group so that you get updated or notified whenever I upload a video, or you can also subscribe to the channel and hit the bell icon so that notification from YouTube comes to you. Whichever way is convenient to you, you can use that option. So yeah, without any more discussion, let's start with the main topic, which is Essay 200. What is Essay 200? Essay 200 tells us about overall objectives of the independent auditor and conduct of audit in accordance with essays. So सबसे पहले इस essay के अंदर ही क्या बताया हुआ है कि एक independent auditor का objective क्या होता है जब भी वो audit कर रहा होता है, and वो ऑडिट किस तरीके से करेगा, एसेज की तरह से करेगा, जैसे जैसे एसेज में बोला होगा उसी तरह से ऑडिट को कंडक्ट किया जाएगा बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर. ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. फिर हमें समझना पड़ेगा कि और एसेज की रिक्वायरमेंट कैसे कंप्लाई करनी होती है, या इस एसे के अंदर कंप्लायंस से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, या ऑडिट कैसे करना है वो क्या बताया हुआ है. सो ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर. व्हाट आर द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर. सो two objectives are there. First one is to obtain the reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatements, whether due to fraud or error, so as to enable the auditor to express an opinion whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable FRF. So first one is what? To express an opinion. ओपिनियन एक्सप्रेस करना इज़ दी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो. अब उस ओपिनियन को आपको एक्सप्रेस करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आपको रीज़नेबल एश्योरेंस obtain करनी पड़ेगी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आप ऑडिट कर रहे हो वो सभी मटीरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री है. उसमें कोई भी चाहे फ्रॉड की वजह से मटीरियल मिस स्टेटमेंट हो सकती हो या फिर एरर्स की वजह से हो, तो वो सभी इन फ्रॉड्स और एरर की रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री है. एंड ऑल्सो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर द एप्लीकेबल FRF. तो इस पर मेरा क्या ओपिनियन है, दिस इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कि मेरे को ओपिनियन देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा. सेकेंड इज़ आपको रिपोर्टिंग करनी है. वंस यू हैव ऑब्टेन्ड द रीजनेबल एश्योरेंस एंड यू एक्सप्रेस द ओपिनियन, तो ओपिनियन कहाँ एक्सप्रेस करोगे, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ऑडिटर्स रिपोर्ट इशू करनी पड़ेगी. और जैसा जैसे एसेज की रिक्वायरमेंट है, ना ही सिर्फ इस एसे की बट सभी एसेज की जो रिक्वायरमेंट है कि आपको ये चीज़ों के बारे में रिपोर्टिंग करनी होती है इन योर ऑडिट रिपोर्ट, तो आपको वो सब भी करना पड़ेगा. जैसे जैसे आपको ऑडिट करते हुए एविडेंसेस मिल रहे हैं, उस पर जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं, कंक्लूजन्स निकल के आ रही हैं, whatever it is, so you have to report the same in the auditor's report. So what are your two objectives? First one is to express the opinion, second one is to report. So express करने के लिए opinion आपको क्या करना पड़ेगा, आपको reasonable assurance obtain करनी पड़ेगी. What do you mean by reasonable assurance? Reasonable assurance का मतलब होता है high but not absolute assurance. मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा एश्योर होने की तो कोशिश करोगे, बट आप इस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकते कि ये मेरी एब्सोल्यूट assurance है, 100% ठीक है. नहीं, कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते. क्यों? बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट. आप कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि आप एब्सोल्युटली एश्योर कर रहे हो इस मामले में कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो किसी भी मटीरियल मिस स्टेटमेंट से कि कोई भी मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स नहीं है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. आप ऐसा कभी भी नहीं कह सकते. आप सिर्फ एक रीज़नेबल एश्योरेंस दे सकते हो इस बात को लेकर. ठीक है,
अब ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स के बारे में आपको कैसे पता चलेगा कि मिस स्टेटमेंट्स जो वर्ड है उसका जो असली मतलब है वो आपको एसए 450 बताएगा। और वहीं अगर मैं मटीरियल वर्ड की बात करूँ तो मटीरियलिटी का हमारा एक एसए है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, विच इज़ एसए 320, जिसके अंदर हम मटीरियल है या नहीं उस बारे में डिटेल में बात करेंगे। वहीं अगर मैं बात करूँ ये मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स किसकी वजह से हो रही हैं, या तो फ्रॉड की वजह से हो सकती हैं या एरर्स की वजह से हो सकती हैं। फ्रॉड्स क्या होते हैं, इंटेंशनल होते हैं। एरर्स क्या होते हैं, अनइंटेंशनली कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। फ्रॉड्स जानबूझकर गलतियाँ कमिट की हैं, तो उस केस में फ्रॉड से रिलेटेड कौन सा रेलेवेंट एसे है हमारे पास, एसे 240 इज़ द रेलेवेंट एसे विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉड। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड और आया, एप्लीकेबल एफआरएफ। एफआरएफ हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, या तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और दी कंप्लायंस फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में कोई भी गलती या फिर नॉन कंप्लायंस एक्सेप्टेबल नहीं होता। यू हैव टू 100% कंप्लाई विद दी कंप्लायंसेस यू नीड टू प्रेजेंट इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। सो हमने अभी एक रफ़ आइडिया ले लिया, या मैं कहूँ हमें समझ आ गया कि हमारे एज एन ऑडिटर क्या ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जब हम एक ऑडिट कर रहे होते हैं किसी भी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ठीक है, हमें समझ आ गया। अब हमें बात समझना है कि इस एसए की क्या रिक्वायरमेंट है। तो इस एसए की रिक्वायरमेंट ये है, पहली कि आपको एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लायंस करना होगा। आपको एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लायंस करना होगा। एथिकल रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या होता है, तो एथिकल रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है पहला कि आपको जो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कोड ऑफ एथिक्स में बताए गए हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कोड ऑफ एथिक्स में बताए गए हैं, उनको आपको फॉलो करना है, कंप्लाई करना है। अब कोड ऑफ एथिक्स में कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताए हैं, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमारे पास टोटल 5 हैं, जिसका निमोनिक मैंने बनाया है आईपी कॉप। आईपी कॉप, आईपी से इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, सी से कॉन्फिडेंशियलिटी, ओ से ऑब्जेक्टिविटी एंड पी से प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। सो व्हाट आर दी कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ये आपके प्रोफेशनल एथिक्स के चैप्टर के अंदर भी कवर्ड है डिटेल में कि इंटीग्रिटी में क्या चीज़ आती है, प्रोफेशनल बिहेवियर किसको बोलते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर क्या है। सो ये आपने प्रोफेशनल एथिक्स में भी पढ़ा होगा, राइट। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में हमारे पास टोटल 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपको कंप्लाई करने होते हैं, ठीक है। सेकेंडली आपको इंडिपेंडेंस का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ऑडिटर शुड ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट। दिस इज़ द प्राइमरी रिक्वायरमेंट। इंडिपेंडेंट ऑडिटर नहीं होगा तो इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं हो पाएगा। सो इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंस किस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बोथ ऑफ देम आर इक्वली इंपॉर्टेंट। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस, बोथ ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट। इंडिपेंडेंस से फ़ायदा क्या होता है, इंडिपेंडेंस से फ़ायदा ये होता है कि आप जब एज एन ऑडिटर इंडिपेंडेंट हो तो आप ज़्यादा इंटीग्रिटी से काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कर पाओगे। क्यों, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो, आप कहीं पर भी बायसनेस नहीं फॉलो कर रहे हो, यू आर नॉट बायस टुवर्ड्स एनी ऑफ द सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस और एविडेंसेस यू आर रिसीविंग। यू आर गिविंग द ओपिनियन एज इंडिपेंडेंट ओपिनियन, नॉट एज based on somebody's suppression, somebody's influence. You are not under anybody's influence. आप अपनी इंटीग्रिटी का ध्यान रख के काम कर रहे हो। जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, आप उन्हीं की तरफ काम कर रहे हो। व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव्स, कि आपको रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करके ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, रिपोर्टिंग करनी है। दिस इज़ योर ऑब्जेक्टिव। तो आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर रहेगा हमेशा, और आपको जहाँ जहाँ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को लगाने की ज़रूरत है वहाँ आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से भी काम करोगे। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा वही है कंप्लायंस का या रिक्वायरमेंट्स का। Okay, so second requirement is what, professional skepticism. First requirement was what, compliance of ethical requirements. Second requirement of this essay is professional skepticism, जिसमें मतलब क्या है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बहुत ईजी है। आपको स्केप्टिकल रहना है। स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है, अलर्ट रहना है। आपको हर एक सिचुएशन में आपके दिमाग में क्वेश्चंस अराइज होने चाहिए कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, what if not. These are some questions that should always be there in your mind whenever you are performing the audit procedures or whenever you are doing the audit of any entity.
आपके दिमाग में हमेशा क्वेश्चंस अराइज होने चाहिए। अगर आपको कोई कुछ कहता है तो आप उसको चुपचाप सिर्फ मानोगे नहीं, आपके दिमाग में जो भी रेलेवेंट क्वेरीज हो सकती हैं, क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो हमेशा आने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द ऑडिट यू आर कंडक्टिंग। सो व्हाट इज़ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? जब हमारे दिमाग में हमेशा ही क्वेश्चंस चलेंगे तो हमारा एटीट्यूड कैसा होगा? क्वेश्चनिंग एटीट्यूड होगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड being alert to conditions which may indicate misstatements due to error or fraud and involves critical assessment of the audit evidences. आपका क्वेश्चनिंग माइंड है, अलर्ट हो उन कंडीशंस को लेके जिनको देखकर आपको रियलाइज़ हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, चाहे फिर वो एरर्स की वजह से भी हो या फ्रॉड्स की वजह से हो। एरर्स से भी तो मिस स्टेटमेंट्स हो जाती हैं ना। सो दोनों ही आपकी रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से मिस स्टेटमेंट हो जाए। सो आपको कुछ ऐसी कंडीशंस लग रही हैं तो वहाँ पर आप अलर्ट हो, स्केप्टिकल हो, सोच रहे हो, क्वेश्चंस रेज कर रहे हो, और जो भी आपको ऑडिट एविडेंसेस मिल रहे हैं बाय परफॉर्मिंग दी प्रोसीजर्स, आप उनको अच्छे से, ऐसे नहीं सिर्फ नॉर्मली असेसमेंट कर रहे हो, यू आर क्रिटिकली असेसिंग दी ऑडिट एविडेंसेस, जिससे कि आपको पता चले कि कहीं कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं हो रहा है जो कि पता लगाया जा सकता था और आप नहीं पता लगा पा रहे हो, राइट। तो ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को कब कब मेंटेन करना होता है? तो ऑडिटर को जब वो अपने ऑडिट को प्लान कर रहा है, जब अपने ऑडिट को कर रहा है, दोनों ही टाइम पर उसको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से ही काम करना चाहिए। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखने से क्या फ़ायदा होगा? तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से क्या होता है कि आपके हाई चांसेस, हाई रिस्क एरियाज़ जो होते हैं ना, जहाँ पर आपको गलत चीज़ों पे क्वेश्चंस रेज़ करने थे या फिर आपका ऑडिट बेटर हो सकता था, वो सब चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को अप्लाई किया होगा अपने ऑडिट में। एक बात बताओ, हो सकता है ना कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो फर्स्ट टाइम इस बार आ रही है, किसी भी ऑडिट में आपने नहीं देखी, बहुत ही हर महीने ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है, अचानक से एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आई विच लुक्स अनयूजुअल। तो क्या आप उस अनयूजुअल ट्रांजैक्शन को ऐसे ही जाने दोगे, या देयर शुड बी सम क्वेश्चंस इन योर माइंड कि ऐसा क्यों हुआ इस महीने, व्हाई दिस ट्रांजैक्शन वाज अंडरटेकन, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट, वेदर देयर वाज एनी कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट फॉर द सेम। सो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आने चाहिए ना। सो क्या ये लीगल था, नहीं था, वेदर इट वॉज अंडरटेकन विद अ गुड इंटेंशन और नॉट, व्हाट वाज द इंटेंशन बिहाइंड दिस ट्रांजैक्शन, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव। तो ये सब क्वेश्चंस आपके दिमाग में तभी आएंगे जब आप अच्छे से काम करोगे, अलर्ट होके काम करोगे। सो आप अगर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन करते हो तो आपकी इस आदत को या इस गलती को कि आप अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस को भी ओवरलुक कर जाते, उसका रिस्क भी कम हो जाएगा, बिकॉज यू आर बीइंग स्केप्टिकल, राइट। सेकेंडली, आप जैसे अपनी ऑडिट ऑब्जर्वेशंस ले रहे हो, उस टाइम पर आपने ऑब्जर्वेशंस ली, आप ऐसा नहीं करोगे कि सभी चीज़ों को एक ही नज़रिए से देख रहे हो, जनरलाइज करके देख रहे हो, नो। आप देखोगे कि किस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में आपके एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशंस रिक्वायर्ड हैं, एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड हैं, तो वो चीज़ें आप तब देख पाओगे व्हेन यू आर बीइंग स्केप्टिकल। ऑल्सो अगर आप स्केप्टिकल नहीं हुए तो आपकी गलत अजम्पशंस लेने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। आपको लग सकता है कि यहाँ पर इतने ऑडिट प्रोसीजर्स का एक्सटेंट इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप स्केप्टिकल होते तो आपको पता चलता कि नहीं, यहाँ पर एक्सटेंट को बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पर हाई चांसेस ऑफ रिस्क दिख रहे हैं, कंडीशंस ऐसी दिख रही हैं। तो कब होता? जब आप स्केप्टिसिज्म के थ्रू काम करते हैं। सो इसको मैं मैंने पढ़ दे दूँ कि इससे क्या होगा अगर आप प्रोफेशनली स्केप्टिकल हो। सो इट विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओवरलुकिंग द अनयूजुअल circumstances, over generalizing when drawing the audit observations. Third, using inappropriate assumptions in determining the NTE of audit procedures and evaluating the results thereof. Right. अब आ जाते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पे। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की बात करते हैं। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के अंदर क्या लिखा हुआ है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में बोला है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है यू हैव टू बी अलर्ट। किन किन चीज़ों के लिए आपको अलर्ट होना पड़ता है? आपको कोई एक ऑडिट एविडेंस मिला विच इज़ समवेयर डिफरेंट
फ्रॉम वॉट यू हैड ऑलरेडी ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग दी प्रोसीजर्स, राइट। आपको कोई ऑडिट एविडेंस मिला जो कि इंडिकेट कर रहा था कि सब कुछ ठीक है, बट वंस यू इंक्रीज्ड दी ऑडिट प्रोसीजर्स का NTE, यू रियलाइज्ड कि आपको कुछ और ऑडिट एविडेंस मिल रहा है जो कि इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है कि जो पहला वाला ऑडिट एविडेंस था वो कहीं ना कहीं गलत है, मतलब दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो जब ऐसा होगा तो आपको देखने की ज़रूरत है या नहीं कि आपका प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इन दोनों टाइप के एविडेंसेस पर आएगा या नहीं आएगा। डेफिनेटली आएगा। अगर आप अलर्ट हो तो आप समझ पाओगे कि पहले मुझे कुछ और ऑडिट एविडेंस मिला था, अब मुझे कुछ और ऑडिट एविडेंस मिल रहा है, तो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है, राइट। तो कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंसेस हो सकते हैं, तो आपको कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंसेस की तरफ ध्यान से अलर्ट रह के काम करना पड़ेगा, राइट। सेकेंडली, आपको हो सकता है ना जो डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं उनकी रिलायबिलिटी पर ही क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं या आपको क्वेश्चन करने का लग रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है, एक बात बताओ, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो किस बेसिस पर बनते हैं? वो आपके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर ही बनते हैं, राइट। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ही रिलायबल नहीं हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ही रिलायबल नहीं हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे वो भी गलत होंगे। सो इसीलिए आपके डॉक्यूमेंट्स रिलायबल हैं या नहीं, इस पर क्वेश्चन रेज करना बनता है, बिल्कुल बनता है। थर्डली, ऐसी कुछ कंडीशंस आपको दिख सकती हैं जिससे लग रहा है देयर आर हाई चांसेस है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कहीं ना कहीं फ्रॉड होने की। तो आपको इन कंडीशंस पर जो इंडिकेट कर रही हैं कि फ्रॉड हो सकता है, फ्रॉड के चांसेस हाई हैं, तो इन कंडीशंस पर भी आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ऑल्सो ऐसी कुछ हो सकते हैं ना सर्कमस्टांसेस जहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट लग रही है कि आपको ऑडिट प्रोसीजर्स ज़्यादा करने पड़ेंगे। ज़्यादा किससे ज़्यादा? जब आपको एसेज में बोला है, एसेज में आपको बताया होता है कि आपको ये ऑडिट प्रोसीजर करना है, बट लेकिन हो सकता है सर्कमस्टांसेस सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर लग रहा है कि इतने से ऑडिट प्रोसीजर करने पर बात नहीं बन रही, मुझे और ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे तभी मैं इस चीज़ को समझ पाऊँगा या पाऊँगी कि एक्चुअल में सही है या नहीं। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स को करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी नॉर्मल। आप कर सकते हो, कोई मना नहीं है। ऐसे में मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, मैक्सिमम थोड़ी ना, इससे ज़्यादा तो कर ही नहीं सकते। अगर आपको ऐसे इसमें आपको ऐसे सर्कमस्टांसेस या फिर सिचुएशंस लग रही हैं तो डेफिनेटली यू कैन परफॉर्म द एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स। सो इसमें आपको क्या कैसे करोगे? कब पता चलेगा कि करने की रिक्वायरमेंट? जब आप अलर्ट होकर ऑडिट कर रहे होगे, right? So professional skepticism includes being alert to, first, contradictory audit evidences, second, questions on reliability of documents, third, conditions indicating the possibility of frauds or possible frauds, fourth, circumstances suggesting the need for audit procedures in addition to those suggested in essays. Okay. अब हमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पता चल चुका है, अब हमें करना है, समझना है प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब क्या होता है? प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब होता है कि आपको ट्रेनिंग मिल रही है, आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी एक्सपीरियंस है विद रिस्पेक्ट टू ऑडिटिंग, अकाउंटिंग या जो भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उन सभी की जो भी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसको एप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस में अप्लाई करना इज़ प्रोफेशनल जजमेंट। जो सर्कमस्टांसेस सिचुएशन की डिमांड है उसके हिसाब से अगर आप अपनी ट्रेनिंग को, नॉलेज को, वो एक्सपीरियंस को अप्लाई कर पा रहे हो ना, तो इसका मतलब है आप प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई कर पा रहे हो, प्रोफेशनल जजमेंट ले पा रहे हो। जजमेंट कब पास करोगे? जब आपके पास नॉलेज होगी। नॉलेज कब होगी? जब आपने इन ट्रेनिंग करी होगी, बुक्स वगैरह रीड करी होंगी, डिग्री होगी, एक्सपीरियंस होगा, तभी तो आप अपनी नॉलेज को अप्लाई करके जजमेंट पास कर पाओगे, राइट। तो प्रोफेशनल जजमेंट के यूज़ कब आता है? तो प्रोफेशनल जजमेंट आपको वाइल मेकिंग योर ऑडिट प्लान्स आपको तब भी अप्लाई करनी पड़ती है कि क्या क्या चीज़ें मुझे कितने स्कोप में रखनी पड़ेंगी, विच आर दी एरियाज़ जहाँ पर मुझे अपना NTE बढ़ा के रखना पड़ेगा, कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर कम रखना पड़ेगा। तो ये कब पता चलेगा? आपके जजमेंट अप्लाई करके देखना पड़ेगा कि कौन से एरियाज सिग्निफिकेंट हैं, कौन से नहीं हैं,
जजमेंट अप्लाई करोगे तभी पता चलेगा, राइट। ऑडिट करते वक्त क्या प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट होती है? येस ऑफ कोर्स। ऐसा नहीं है ना कि आप हर एक ट्रांजैक्शन को बैठ के चेक करोगे, नो यू कैन नॉट। तो आपको जजमेंट के हिसाब से ही तो डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कौन से वाले लेजर्स में कितनी कितनी ट्रांजैक्शन को चेक करना है, कितनी वाउचिंग करनी है, कितनी वेरिफिकेशन करनी है एंड ऑल दोज थिंग्स। तो आप कब कर पाओगे? व्हेन यू आर अप्लाइंग द प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट क्या कहीं बुक्स में मिलती है कि ये ऐसा होगा तो ऐसी प्रोफेशनल जजमेंट पास कर देना, ऐसा होगा तो ऐसी कर देना? नो। प्रोफेशनल जजमेंट आपके जो भी गिवन फैक्ट्स हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, उस पर बेस्ड होती है। उसके हिसाब से यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू शुड टेक और व्हाट यू शुड नॉट टेक। सो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। अच्छा, अब प्रोफेशनल जजमेंट कब कब काम आती है? तो प्रोफेशनल जजमेंट प्लानिंग परफॉर्मिंग दोनों टाइम पर काम आती है। जब आप अपना चेक कर रहे होते हो कि कोई चीज़ मटेरियल है या नहीं है, या यहाँ पर मेरा ऑडिट रिस्क कितना है, तो यहाँ पर सभी जगह पर आपका जजमेंट अप्लाई होता है कि आपको ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट कितना रखने की रिक्वायरमेंट है। सो उसी से आपको पता चलता है कि मटीरियलिटी, ऑडिट रिस्क कितना कितना रखें, उसके एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स कितना रखें, वो सभी तभी हो पाता है व्हेन यू आर अप्लाइंग दी प्रोफेशनल जजमेंट। आप ऑडिट एविडेंसेस जो आपको ऑब्टेन हुए हैं उनको आप क्या कर रहे हो? इवैल्यूएट कर रहे हो। तो व्हेन यू आर इवैल्यूएटिंग दी आप ऑडिट एविडेंसेस, तो आपको क्या आप ऐसे ही डिसाइड कर पाओगे विदाउट अप्लाइंग दी जजमेंट कि कौन से ऑडिट एविडेंसेस रेलेवेंट हैं, सफिशेंट हैं या नहीं, या कौन से एविडेंसेस कितने कंक्लूसिव हैं, क्या कंक्लूजन्स आ रही हैं? तो आपको तभी बता पाओगे ना व्हेन यू आर अप्लाइंग दी प्रोफेशनल जजमेंट। सो दिस इज़ वाई प्रोफेशनल जजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ SA 200। वाई? बिकॉज आपको ये हर टाइम अप्लाई करनी होती है एंड इट इज़ नॉट समवेयर रिटन इन द बुक्स एंड ऑल। यू हैव टू apply it with respect to all the facts and circumstances of the case, right? अब आ जाते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ SA 200 पर, विच इज़ सफिशेंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस एंड ऑडिट रिस्क। अभी हमने पढ़ा था कि प्रोफेशनल जजमेंट आपकी इंपॉर्टेंट होती है जब आप सफिशेंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस को इवैल्यूएट कर रहे होते हो। तो इवैल्यूएट किसको कर रहे थे? सफिशेंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस को। तो अभी होते क्या हैं, ऑडिट रिस्क क्या होता है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि सफिशेंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस क्यों कलेक्ट करता है ऑडिटर? कलेक्ट करता है ऑडिट एविडेंसेस रीज़न बीइंग कि वो अपने ऑडिट रिस्क को कम कर पाए, जिससे कि उसका अगर ऑडिट रिस्क कम होगा तो इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन देने के चांसेस कम से कम होंगे। ही विल बी इन अ पोजीशन टू गिव द एप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इफ दे आर नॉट मटीरियली मिसस्टेटेड, ही विल बी एबल टू गिव द एप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन when he has so much of appropriate audit evidences, which are able to reduce his audit risk to an appropriate low level. Can audit risk ever be equal to zero? Can audit risk be equal to zero? No, audit risk cannot be equal to zero. Reason being inherent limitations of audit. सो कभी भी ऑडिट रिस्क ज़ीरो तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ आप इतने ऑडिट एविडेंसेस को ऑब्टेन कर लो कि आपका जो ऑडिट रिस्क है वो एक एप्रोप्रिएट लो लेवल तक पहुंच जाए। ठीक है, अब एप्रोप्रिएट लो लेवल तक अगर ऑडिट रिस्क पहुंच भी गया तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि आपके जो सफिशेंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं, आप उनके बेसिस पर कुछ कंक्लूजन्स फॉर्म कर पाओगे। तो उसके बेसिस पर यू विल बी इन अ पोजीशन टू गिव द ओपिनियन on the financial statements. So first of all you have to perform the procedures, you will get the sufficient appropriate audit evidences. Once you get them, you will make some conclusions based upon them. Once you have reached this stage, now you will be in a position to express an opinion on the financial statements, right? सो जैसे पहले भी डिस्कस किया था, रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब होता है हाई बट नॉट एब्सोल्यूट। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस का मतलब क्या होता है? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस में टू वर्ड्स हैं, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। व्हाट डू यू मीन बाय सफिशिएंट? सफिशिएंट रेफर्स टू क्वांटम। नाम से ही पता चल रहा है सफिशिएंट है या नहीं, काफ़ी है या नहीं। काफ़ी क्या है? क्वांटिटी। तो क्वांटिटी वाइज वेदर इट इज़ सफिशिएंट, काफ़ी रहेंगे इतनी अगर मैं ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन कर लूँ। अच्छा, एप्रोप्रिएट मतलब क्या इस पर्टिकुलर क्वालिटी के ऑडिट एविडेंसेस एप्रोप्रिएट हैं, सही हैं। तो एप्रोप्रिएटनेस रेफर्स टू द क्वालिटी एंड सफिशिएंसी रेफर्स टू द क्वांटम। सो इन दोनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजीली क्लियर है। अच्छा,
ऑडिट रिस्क क्या होता है? ऑडिट रिस्क मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ऑडिट रिस्क वो रिस्क होता है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियली मिसस्टेटेड हैं और उस सिचुएशन में जो ऑडिटर है वो गलत ओपिनियन दे देता है, तो दिस इज़ व्हाट इज़ ऑडिट रिस्क। सो इस चीज़ का कि आप गलत ओपिनियन दे दोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर जो कि मटीरियली मिसस्टेटेड है, इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दोगे, तो दिस इज़ द रिस्क विच द ऑडिटर फेसेस, राइट। क्या ये कभी भी ज़ीरो हो सकता है? नो, इट कैन नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो, राइट। अब ऑडिट रिस्क के फंक्शंस कौन से होते हैं? तो ऑडिट रिस्क जो है, नहीं, ऑडिट रिस्क किसका फंक्शन होता है? रादर ऑडिट रिस्क इज़ अ फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट एंड द डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्ट ना कर पाने का रिस्क डिटेक्शन रिस्क, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, मटीरियल मिसस्टेटमेंट होने का रिस्क, तो इन दोनों का ही फंक्शन होता है ऑडिट रिस्क, राइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पर, विच इज़ कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसए। हमने ये नाम में भी पढ़ा था, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिटर, इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसए। तो उसमें कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसए का मतलब क्या था? कि ऑडिटर को जो भी पर्टिकुलर एसेज एप्लीकेबल हो रहे होते हैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करते वक्त उन पर्टिकुलर एंटिटीज़ पर, वो एसेज का कंप्लायंस करना चाहिए। सारे अप्लाई हो रहे हैं तो सारे करो, नहीं हो रहे तो जितने भी रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब जो पर्टिकुलरली अप्लाई हो रहे हैं, या जो पूरा एसे है, ठीक है, पूरे एसे में से ज़रूरी नहीं है ना कि सारे ही पॉइंट्स आपके एप्लीकेबल होंगे उस पर्टिकुलर एंटिटी पर। हो सकता है ना कुछ पॉइंट्स एप्लीकेबल हों एक पर्टिकुलर एसे पे, तो जो पार्ट ऑफ द एसे है उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो टू द एंटिटी वाइल परफॉर्मिंग द ऑडिट। ओके, अब ऑडिटर के पास एसेज की पूरी नॉलेज होगी तभी वो अप्लाई कर पाएगा। सो ऑडिटर मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ कंप्लीट टेक्स्ट ऑफ एसे, जिसमें आपको अप्लाई करना भी आना चाहिए और जो भी एक्सप्लेनेटरी मटेरियल्स होते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म द ऑडिट वेल। अच्छा, आपका जो मेन वो होता है ऑब्जेक्टिव, वो क्या होता है कि आपको ऑब्जेक्टिव्स ऐसे 200 के हिसाब से अचीव करने पड़ते हैं, बट हाँ, जो आपके अदर दूसरे एसेज हैं, इंडिविजुअली ऑल द एसेज आर गिवन, उन सभी में आपको लिखा हुआ होता है फर्स्ट थिंग इज स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एसे। तो दैट ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो नीड टू बी, इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी टेकन केयर ऑफ, यू हैव टू अचीव देम एज वेल। सो आपको सभी एसेज के ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करना होता है। अगर एक ऑडिटर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाता तो उस केस में क्या करेगा? वो अपनी ओपिनियन को क्या कर देगा? मॉडिफाई कर देगा। अगर मॉडिफाई नहीं और उसको लगता है कि इस एंगेजमेंट से निकलना ही सही रहेगा, ओपिनियन देना ही सही नहीं है इस एंगेजमेंट में, सो व्हाट ही विल डू इज़ ही विल विड्रॉ फ्रॉम दैट एंगेजमेंट। सो हमें हर ऐसे में लिखा होता है कि अगर ऐसा होता है तो ईदर दी ऑडिटर can give qualified or adverse, qualified or disclaimer of opinion, और he can withdraw from the engagement। हमने कितने essays कवर किए होते हैं जिसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स में you we got to see कि ऐसा होता है, लिखा हुआ होता है ना, qualified adverse, qualified disclaimer of opinion दे दो, नहीं तो withdraw कर लो। क्यों? क्योंकि अगर वो अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को ही अचीव नहीं कर पा रहा तो उसको अपने ओपिनियन को या तो मॉडिफाई करना पड़ेगा, वो नहीं सही लग रहा तो विड्रॉ करना भी हो सकता है फ्रॉम द एंगेजमेंट, राइट। अब मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, मतलब वन लाइन टिप्स हैं जो एसे के अंदर थे, बट हाँ मुझे लगा कि कई बार एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं, मे बी दे माइट आस्क यू दीज एमसीक्यूज़। तो कौन से हैं? सो एमसीक्यूज़ के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऐसे ही मार्क कर दिया कि ऑडिटर का जो ओपिनियन होता है वो आपको एक रीज़नेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है, राइट। हमें पता चला ये चीज़। तो रीज़नेबल एश्योरेंस क्या एब्सोल्यूट एश्योरेंस है इस बात का कि जो मैनेजमेंट है वो सही से काम कर रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं होगी, नहीं। ये आपको इस बात से एश्योर नहीं करता कि एंटिटी की फ्यूचर वायबिलिटी कैसी होगी, एंटिटी फ्यूचर में कैसा काम करेगी, उसकी कोई भी एश्योरेंस नहीं देता है एक ऑडिटर। ना ही ये बताता है कि मैनेजमेंट किस एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ काम कर रही है, ऐसा कुछ भी ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में नहीं बताता है। उसके ओपिनियन को इस तरीके से नहीं ले सकते हम। So the auditor's opinion therefore does not assure the future viability of the entity nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the entity. This is one of the important one-liners कि future viability के बारे में कुछ भी नहीं अश्योरेंस देता है एक ऑडिटर का ओपिनियन। आज मैंने ओपिनियन दे दिया कि अनक्वालिफाइड अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट है, ओपिनियन है, तो इस केस का क्या मतलब है कि बहुत अच्छी एंटिटी है, कोई भी गड़बड़ नहीं है, आगे आप इस पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं? नो,
ऑडिटर ऐसा नहीं कहता कि आगे भी अच्छे से ही काम करेगी। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट है कि ऑडिट रिस्क ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता। ये मैं बार बार बोल चुकी हूँ ऑलरेडी, क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं जब भी हम एक ऑडिट कर रहे होते हैं। इनहेरेंट लिमिटेशंस आपकी हो सकती हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो नेचर है। जैसे कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है मैनेजमेंट, तो वो क्या करती है, कहीं कहीं जगह पर उनको एस्टिमेट्स लेने पड़ते हैं, जजमेंट बेस्ड उनको वैल्यूज़ डालनी पड़ती हैं। तो इसमें क्या होता है, देयर इज़ सम जजमेंट, देयर इज़ सम एस्टिमेट। क्या आप इस बात को कह सकते हो कि हमेशा ही बिल्कुल ठीक एस्टिमेट है? अगर इधर 10450 लिखा है तो दिस इज़ परफेक्टली राइट फिगर, बिकॉज वो अगर जजमेंट पर बेस्ड है तो हो सकता है ना जजमेंट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए, एक्चुअल में जब फिगर्स आएंगी तो वो चेंज हो सकती हैं। यस, सो इसीलिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर ही ऐसा है, कई बार आपको एस्टिमेट्स लेने पड़ते हैं विच मे बी करेक्ट और मे नॉट बी करेक्ट। सो इसीलिए इनहेरेंट लिमिटेशन आप कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते कि यही एक्चुअल में फिगर भी होगी इन रियलिटी, नो। ओके, सेकेंडली नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर्स देखो, आप जब ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो तो आप मैनेजमेंट से काफ़ी सारे डिटेल्स मांगते हो, बट क्या मैनेजमेंट आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है जो आप मांगते हो? नहीं, कई बार तो बार बार मांगनी पड़ती है, तब जाके डिटेल्स मिलती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन ना देने का रीज़न हो सकता है, ये तो एक तो इंटेंशनल हो सकता है क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ फ्रॉड कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ उनसे गलतियाँ हुई हैं जिसको वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपको डिटेल्स नहीं दे रहे। या फिर हो सकता है वो भूल गए, या फिर अनइंटेंशनली वो नहीं दे रहे, या कुछ भी ऐसे रीज़न जो कि अनइंटेंशनल है, प्योरली अनइंटेंशनल है, राइट। सो इसमें ऐसे कुछ हो सकते हैं इन्फॉर्मेशन जो आपको नहीं मिली। तो इस केस में जो आपके ऑडिट प्रोसीजर्स हैं वो फ्रॉड को डिटेक्ट करने में कहीं ना कहीं इनफेक्टिव। फ्रॉड्स को ना ऐसे ही नहीं करता कोई भी। फ्रॉड कर रहा है तो ऑब्वियसली उसने सारे तरीके अपनाए होंगे कि वो उसको छुपा पाए, फ्रॉड को छुपा पाए। तो फ्रॉड को छुपा पाएगा तभी तो फ्रॉड सही से उसका सक्सेसफुल हो पाएगा। तो इसीलिए फ्रॉड्स को पकड़ने में के लिए आपके ऑडिट प्रोसीजर्स इफेक्टिव नहीं हो सकते कई बार। क्यों? क्योंकि आप उतने प्रोसीजर्स नहीं अप्लाई कर पाओगे, परफॉर्म कर पाओगे जिससे कि आप एक फ़्रॉड को पकड़ पाओ। कोशिश पूरी करोगे, बट ऐसा नहीं है ना कि आप फ्रॉड पकड़ने के लिए ही जा रहे हो। आप कोई इन्वेस्टिगेशन करने थोड़ा ना जा रहे हो, आप ऑडिट करने जा रहे हो। यू आर नॉट देयर टू इन्वेस्टिगेट दी एंटिटी। आप उनकी सारी की सारी गलत चीज़ों को ही नहीं ढूंढने जा रहे हो, आप तो ऑडिट कर रहे हो, देख रहे हो कि आपको क्या क्या एरर्स दिख रहे हैं, क्या क्या गलतियाँ दिख रही हैं। मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स तो नहीं हो रही हैं ऑडिट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, सॉरी, राइट। अब आ जाते हैं तीसरा रीज़न जिसकी वजह से इनहेरेंट लिमिटेशन होती है। एक बात बताओ कि आपको क्या सिर्फ एक ही एंटिटी का ऑडिट करना होता है या बहुत सारी एंटिटीज़ का करना होता है? बहुत सारी का करना होता है। तो आप एक ही ऑडिट में पूरे 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने लगा दोगे, या यू हैव टू समवेयर लिमिट योर सेल्फ कि मुझे इतना ही चेक करना है, क्योंकि आप पूरा सारी एक एक ट्रांजैक्शन को डिटेल में चेक नहीं कर सकते कि सही है गलत है, राइट। तो आपको सैम्पलिंग बेसिस पर चेक करना पड़ता है, आपको टेस्ट चेकिंग की तरफ जाना पड़ता है। यू हैव टू सी व्हाट ट्रांजैक्शंस नीड योर अटेंशन मोर एंड व्हाट नीड लेस, सो विच वन नीड्स लेस। सो उस केस में क्या है, देयर विल बी हाई रिस्क कि कुछ ट्रांजैक्शंस आपसे छूट जाएं क्योंकि आपने सैम्पलिंग बेसिस पर चेकिंग करी है, राइट। ऑल्सो जो कंपनी है, एंटिटी है, वो क्या चाहेगी, आप 6 महीने जा के उनको परेशान करते रहो, उनसे डिटेल्स मांगते रहो? नहीं, वो भी चाहेगी कि टाइमली भाई ऑडिट हो जाए, जिस टाइम पर जितना टाइम है उतने टाइम में ऑडिट हो जाए। ये नहीं कि ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है और ज़्यादा एंटिटी को आप डिस्टर्ब भी कर रहे हो बार बार जा कर, राइट। ऑल्सो अगर आप 6-6 महीने अगर एक ही क्लाइंट पे लगाओगे तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, आप पैसे कम चार्ज करोगे, ज़्यादा करोगे? तो क्या सामने वाला बंदा जो ऑडिट करवा रहा है वो सारे काम को दोबारा से चेक करवाने के लिए आपको ज़्यादा पैसे देना चाहेगा? नो सर। टाइम के रिस्पेक्ट में भी और कॉस्ट के रिस्पेक्ट में भी इट इज़ नॉट वेरी फीजिबल कि बहुत ज़्यादा टाइम लगाया जाए, एक एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को चेक किया जाए। तो इस वजह से यू कैन नॉट ऑलवेज बी एब्सोल्युटली श्योर जो ट्रांजैक्शन है वो पक्का सारी की सारी एकदम सही है, या राइट। सो इसी वजह से इनहेरेंट लिमिटेशन है। आप रीजनेबल एश्योरेंस देते हो, कभी भी एब्सोल्यूट नहीं देते। इसी वजह से आपका ऑडिट रिस्क तो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको लो लेवल तक लेके जा सकते हो, जितना लोएस्ट पॉसिबल है, with performing appropriate audit procedures and obtaining the sufficient and appropriate audit evidences, but you cannot reduce it to such a level which becomes zero, right.
सो यूज़र्स एक्सपेक्टेशन टाइम कॉस्ट के रिस्पेक्ट में होती है कि रीज़नेबल रहे, टाइम भी, कॉस्ट भी रीज़नेबल टाइम में हो जाए, रीज़नेबल कॉस्ट में हो जाए कि आपका ऑडिट। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, टेस्ट चेकिंग करनी पड़ती है, और आपके जो मोस्टली आपका टाइम और अटेंशन जाता है दैट इज़ टुवर्ड्स दोज एरियाज़ जहाँ पर हाई चांसेस, हाई रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स है. So yeah, this was all about essay 200. I hope you liked the video. This was a very easy standard, I would say, not a technical one. Still I've tried my best to cover each and every point from this essay, and I hope you liked it. If you do, please give it a big thumbs up, and because it means a lot for me when people like the video, share it with their friends, and subscribe to the channel, those who haven't done it yet. And also, if you have not watched the previous videos, in case you are new to this channel and you have not watched the videos which have been previously uploaded, you can check them out if you like this video. And also thank you for watching my all the videos and showering so much love. This was all for today. I will see you in the next video. Until then, stay safe, stay healthy, and I'll be back soon. Bye bye.